मेरा नाम मंजू रानी है। मैं पीजीटी हिस्ट्री पोस्ट पर हूँ यहाँ पर, और मैं पिछले 1 साल से यहाँ पर पढ़ा रही हूँ। ये मेरा दूसरा साल है। उस दिन इवनिंग असेंबली के टाइम पर जब हम साइन कर रहे थे तो एक पूरा भीड़ जिसमें 10 और 11 के स्टूडेंट्स थे, उनमें 10 का जो स्टूडेंट था अंकुश सिंह, वो मुझ पर चिल्लाते हुए आया, पूरा भीड़ को लाते हुए, कि उसका था कि आपने मेरे पेरेंट्स से मेरा बिहेवियर और मेरा एकेडमिक क्यों बताया। तो इस वजह से सभी लोग मुझ पर चिल्ला रहे थे, अब्यूजिव वर्ड यूज़ कर रहे थे। तो वहाँ मुझ पर आगे की तरफ बढ़ते जा रहे थे मारने के लिए। तो वहाँ पीटी फीमेल जो है हमारी और मेट्रोन, उन्होंने मुझे सेव किया, वहाँ बाहर तक लेकर आए। फिर उसके बाद में बाहर जाते टाइम जब मैं अपने गर्ल्स हॉस्टल की तरफ जा रही थी, उस टाइम पर ये 11 के बॉयज़ थे पूरा गैदरिंग करके। इनमें से सब लोगों को तो, कुछ लोगों को तो रोक दिया गया पीटी मैम और मेट्रोन ने, लेकिन उनमें एक लड़का सुनिंदर धींगिया क्लास 11 स्टूडेंट, वो मेरे पीछे भागा मुझे मारने के लिए। सब यही चिल्ला रहे थे कि अंजू रुको, इसको मारो मारो करके। तो सुनिंदर धींगिया मेरे पीछे आया मुझे मारने के लिए। तभी जो सीनियर गर्ल्स हैं उन्होंने आके मुझे बचाया, एक लेयर बना लिया और मेरे को अटैक करने से उन्होंने रोक दिया। अगर ये सब नहीं होते तो आज शायद मैं या मेरा बच्चा सेफ नहीं होता। একচুৱেলি সেইদিনাখন আছিলে PTC মিটিং। আমি PTC মিটিং ময়ো আছিলোঁ। একচুৱেলি মই নন টিচিং হিচাপে মই ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিছিলোঁ PTC মিটিঙত। PTC মিটিং হৈ যোৱাৰ পাছত তো মই ঘৰত গুচি গ'লোঁ। ঘৰত গুচি যোৱাৰ পাছত মই পাছত গম পালোঁ, মই ঘৰত আছিলোঁ। তাৰপিছত ছাৰে ফোন কৰিলে, এনেকুৱা তেনেকুৱা হৈছে, আছোন। তেতিয়া মই আহিলোঁ, আহি কথাটো ছাৰৰ পৰা গম পালোঁ। গম পাই তেতিয়া আমি তো ষ্টুডেণ্ট চবটো মবত আছে, গতিকে আমি এইটো ক্ষেত্ৰত যি ষ্টুডেণ্টে যিটো ইনডিচিপ্লিন কৰিছে, সেইটো কাৰণে মই ভাবোঁ যিখিনি ষ্টুডেণ্ট আছে সিহঁতৰ এইটো মবত অহা বা ইনডিচিপ্লিন কৰা যিখিনি ষ্টুডেণ্ট আছে, ইয়াৰ মূল কাৰণটো মই ভাবোঁ ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত পেৰেণ্টছৰ হাত আছে। যিটো কাৰণে আমি স্কুলৰ অথৰিটিয়ে আজি বাৰ বাৰ কৈ আছে ষ্টুডেণ্টক মোবাইল দিব নালাগে, কিন্তু পেৰেণ্টছে আহি মোবাইলবিলাক দি থৈ যায়হি। আৰু না সেইটো হাউচ মাষ্টাৰ এজনে, না টিচাৰ এজনে, না প্ৰিন্সিপাল এজনে। সেই মোবাইলৰ পৰাই মই ভাবোঁ মানে বেছি ইনডিচিপ্লিন ক্ৰিয়েটটো হৈছে। নৱোদয় বিদ্যালয় কিন্তু ইয়াৰ প্ৰথম নহয়, আমাৰ মনত আকৌ পুনৰ আগতো দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল। এইবাৰ পুনৰ যিহেতু বিতৰ্কত আহিছে, এই গোটেই বিষয়টো কিবা নিচা জাতীয় কিবা সামগ্ৰীৰ ক্ষেত্ৰতো হৈছে নেকি? মই ভাবোঁ হয়, সেইটোও হয়। কাৰণ আজি বিদ্যালয় কেম্পাছত নিচা উপলব্ধ, এইটো ক'ম। আজি এই ইনডিচিপ্লিন কেছটো হোৱাৰ আগতে আমি এজন ষ্টাফ ৱাৰ্ড, মানে এজন ষ্টাফৰ ল'ৰাই ইয়াতে পঢ়ে, তেখেতক আমি ধৰা পেলাইছিলোঁ। ধৰা পেলোৱাত আমি সেই ল'ৰাজনক ছাছপেণ্ড কৰা হৈছিলে সেইদিনাখনৰ পৰা। এতিয়াও ছাছপেনশ্যনত আছে। আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ যিবিলাক কাৰুকাৰ্য মই চলি থাকে বুলি ভাবোঁ। মুঠ ল'ৰা কেইজন আছিলে মানে কোনটো গ্ৰুপত ক'লে? যিদিনা আপোনালোকৰ যি মিটিং হৈ আছিল বুলি কৈছে, বা মিটিঙতে যি এই পৰিস্থিতিলৈ গ'লগৈ, কেনেকুৱা ধৰণৰ? নাই, ইয়াত মেইনলি মানে জানিব পৰা মতে 22জন ষ্টুডেণ্ট মানে ইনভলভ আছে। এতিয়া ছাত্ৰকেইজনৰ ওপৰত কি লোৱা হৈছে? ছাত্ৰকেইজনৰ ওপৰত আমি আমাৰ ইমিডিয়েট বছ, আমাৰ ডেপুটি কমিশ্যনাৰ ডিব্ৰুগড় ডিষ্ট্ৰিক্ট, আমি তেওঁৰ লগত কমিউনিকেট কৰিলোঁ। আৰু বস্তুটো এতিয়া অন প্ৰচেছত আছে। আমি গৈছিলোঁ, কালিও গৈছিলোঁ DC ছাৰক লগ কৰিবলৈ। DC ছাৰক আমি নাপালোঁ। তেতিয়া আমাৰ ইনচাৰ্জ DC ছাৰে আমাৰ যিটো কমপ্লেইন, আমাৰ যিটো ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন দিছিলোঁ, সেই বস্তুটো ADC এডুকেশ্যনক হেণ্ড অভাৰ কৰিছে। আৰু তেখেতলোকে আমাক ক'লে যে এইটো মেজিষ্ট্ৰিয়েল ইনকুৱাৰী হ'ব। এইটো কিন্তু বহুত দুখদ খবৰ। আৰু এনেকুৱা এটা আকৌ ভৱিষ্যতে যাতে নহয়। হয়, পুনৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে মৰাণস্থিত যি নৱোদয় বিদ্যালয় আছে, এই নৱোদয় বিদ্যালয় পুনৰ বিতৰ্কৰ আওতালৈ অহা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু এই মুহূৰ্তত আমি বৰ্তমান উপস্থিত হৈছোঁ সেই বিদ্যালয়ত। আৰু বিদ্যালয়ৰ প্ৰিন্সিপালৰ যি কক্ষ আছে, কক্ষত আমি প্ৰথমতে সোমাই যাব বিচাৰিছোঁ। তেওঁলোকৰ লগত পোনপটীয়াভাৱে আমি কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম। ছাৰ, উস দিন क्या हुआ था क्या? जी, मेरा नाम रतीश कुमार है। मैं इस विद्यालय का वाइस प्रिंसिपल हूं और फिलहाल
मैं इंचार्ज प्रिंसिपल भी हूँ, यानी कि ये सारा विद्यालय का देखभाल मैं ही कर रहा हूँ। मुझे यहाँ आए हुए एक ही सप्ताह हुआ है, वैसे मैं केरला का रहने वाला हूँ। बड़ी ही दुखद बात है, बड़े ही शर्म के साथ मुझे ये बयान करना पड़ रहा है कि मेरे ही स्टाफ मेंबर्स में से एक पीजीटी हिस्ट्री जो कि 5 महीना प्रेग्नेंट है, वो बहुत मतलब कॉम्प्लिकेशन से चल रही है, फिर भी उस लेडी ने बच्चों की भलाई के लिए वो क्लासेस अटेंड कर रही हैं, पढ़ा रहे हैं। मगर उन्हीं के साथ यहाँ के 10th और 11th के कुछ बच्चों ने, यानी कि 30 to 40 स्टूडेंट्स एक मॉब बना करके उनके ऊपर एक जानलेवा अटैक कहूँगा मैं कर दिया है। सारे स्टाफ हम लोग सदमे में है, सारे स्टाफ मेंबर सदमे में हैं और प्रिंसिपल होने के नाते मेरी जिम्मेदारी है कि मेरे स्टाफ का प्रोटेक्शन करना। मैं उसमें पूरी तरह चूक चुका हूँ। मुझे दुख इस बात का है कि उनकी मॉडेस्टी पर ये हो रहे थे, हम लोग कुछ कर नहीं पाए, बच्चे हुड़दंग मचा रहे थे। मगर मेरे कुछ जाबाज स्टाफ मेंबर्स ने, जिनमें पीजीटी बायोलॉजी सर हैं, पीईटी मैडम हैं, मेट्रन्स हैं, इन लोगों ने बड़ी बहादुरी दिखाकर मेरे स्टाफ मेंबर को बचा लिया और मेरे गर्ल स्टूडेंट्स ने भी बड़ी बहादुरी के साथ उनको बचा लिया है। बाद में उनको हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। स्कूल के अंदर मेरे ऊपर भी अटैक हो गया। मैं किसी तरह जान बचा करके कैंपस के बाहर में भाग गया। पूरी रात मोरान इशू किसे हुआ था, किसके लिए हुआ था? जी, इश्यू कुछ भी नहीं है जी। इश्यू बड़े मज़ेदार बात है। पीटीसी मीटिंग के दौरान मैडम जी बच्चे को मार्क्स कार्ड दे रहे थे। एक बच्चे का मार्क्स कम था। पेरेंट्स ने पूछा कि मार्क्स कम क्यों है। मैडम ने कहा कि ये पढ़ाई में इसका ध्यान नहीं है, क्लास बंक करता है, ये टीचर्स को गाली गलौज करता है, तो आप उसको ज़रा समझाइए। मैडम ने ये बात कही और पेरेंट्स ने शायद ये बात उस लड़के से कही होगी, तो उससे अनॉयड होकर he created all these nonsense things। तो मैडम को हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। मैं पूरी रात नहरकाटिया मोरान नेशनल हाईवे पे ठंड से कांपता रहा, क्योंकि ये बच्चे जो है मेरे इंतज़ार कर रहे थे कि मैं कैंपस में हूँ और मुझे मारूं। सारे डंडा, लाठी, पत्थर सब लेके मेरे इंतज़ार कर रहे थे। मेरे स्टाफ भी परेशान थे। लोकल जो बंदे थे उन्होंने मेरा बड़ा सपोर्ट किया। रात को 12 बजे हम लोग मोरान पुलिस स्टेशन गए। इंस्पेक्टर के साथ हम अंदर आ गए। इंस्पेक्टर भी इनके हुड़दंग देकर हैरान हो गए। कल रात भी इन लोगों ने मॉब क्रिएट किया, पीजीटी बायोलॉजी सर के घर पे अटैक किया। ये रोज़ का घटना है। 95% ऑफ स्टूडेंट्स बड़े अच्छे हैं, सिर्फ 5% स्टूडेंट्स जो हैं इस तरह के असामाजिक गतिविधियों में लिप्त हैं। अगर इन लोग मतलब मेरा हाथ जोड़ के प्रशासन से, चीफ मिनिस्टर साहब से भी मतलब मेरा रिक्वेस्ट है कि हमें प्रोटेक्शन दीजिएगा और जितने भी असामाजिक तत्व इस स्कूल में घुसे हुए हैं इनको बाहर कर दीजिएगा, ताकि जेएनवी डिब्रूगढ़ का भविष्य उज्जवल हो। मैं आपनक काखলৈ আহিছোঁ। আপুনি যিহেতু দায়িত্বত থকা গম পাইছোঁ, যদি উঠিলৈ অলপ সুবিধা হ'ব। প্ৰকৃততে উক্ত দিনটোত কেনেকৈ ধৰণৰ কি ঘটনা কি হৈছিল?